So everybody is giving mains, right? No. Okay, interesting. But anyway, so how many of you are appearing for mains? Okay, you are appearing for mains. Okay. So my name is Vishal. I got 63 rank. Optional also, I am the All India topper. So anyway, so I'm here to talk about the Hindi language paper. It's a compulsory paper. Okay. So our entire talk would be divided into few parts, which I'm going to suggest. The first one is that what is the importance of this language paper? Okay. Who are the people who have to give it? Okay. Second part is the paper format. The paper format has to be understood. Okay, once you have understood the paper format, we'll go for the strategy and brief description of each and every part of the paper. Okay, and then we would be going for the low hanging fruits, which I call basically the parts which could be easily attempted. Okay, especially for those who are giving mains this year, which are the areas which they could just now itself focus and easily sail across. Okay, and the last part is the essay. Okay, essay. So basically, just a brief about myself. I originally belong to Bihar, but I have been born and brought up in Arunachal Pradesh. Okay, so as a result of which we get this exemption from language paper. We don't have to write the language paper. Anyone who is a domicile of the Arunachal, but there are 3 states or some states. You just have to go through the DAF. You'll know. So they are exempted from the language paper. I felt that it is my Matri Bhasha, so I should actually attempt it. I would have got exemption, but I still went for it. After working for corporate in 2 years, I was the CEO. So, English became my mother tongue, to be honest. It was quite like and I have forgotten the vocabulary of Hindi. But still, I took it as a challenge and I thought I should be doing. Okay. So let's start with first is the qualifying marks. To be specific, in 2002, 11,000 students gave the mains. Okay, 11,000 people gave the mains. Out of that, around 1,200 people couldn't qualify this Hindi language paper. So it's a good significant amount of people who actually fail in this language paper. So you must be very much what you call you should not take it very lightly as well. Okay, so when in language paper, both English and Hindi has the same format. Okay, so whatever I'm going to talk about is going to be applicable to both the language paper. Okay, when it comes to 25% is for both of it out of 300. So basically you have to score around or exact 75 marks. Okay, so that is the amount of marks that one has to score so as to clear this qualifying paper. Okay, if you basically the process of evaluation is such that when you are giving your mains, first your qualifying papers are getting evaluated. If you don't clear this qualifying paper, none of your paper, GS, optional and essay would be checked. Okay, so one has to take it very seriously. If you're not qualifying this, then even your marks won't come. Basically, when you would be downloading your marks, even that won't be reflected because you have just not qualified the English and Hindi language paper. Okay, so that's why one has to be very much what we call, at least do not take lightly, because I would just tell you what is the strategy to get this 75 at any cost. Okay, let's fastly move. I was most of the people who are watching it online, I mean, we can take this what you call question answer afterwards, but I would be very much what we call crisp when it comes to this what you call lecture. Okay, because the people who are watching it are giving mains. Okay, I have to be crisp in this respect. So let's start with the first is the paper format we'll talk about. Okay, paper format is, again, as I said, paper format would be same for both the language paper or any language paper that you are going for. Okay, so let's talk about the paper format, and which is the important part which one has to understand. Paper format, the first question that will come would be write an essay, और जिसको आप लोग हिंदी में कहेंगे निबंध. ठीक है, आपको एक निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 600 वर्ड्स है. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो होगा वो निबंध का होगा और इसमें आपको 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो अगर आप इसमें अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छा निबंध लिख रहे हैं, तो आप 75 के बहुत क्लोज आ सकते हैं एक ही क्वेश्चन से. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई वुड बी separately discussing how to go ahead with essay in the last section. Okay, it's a very important section.
The second question that will be there, it would be what we popularly call as the unseen passage, or in Hindi it would be apatit gadyansh. It would be 60 marks. ओके 60 मार्क्स का ये होगा अपठित गद्यांश, जो सेकेंड पार्ट होगा. ठीक है. आई बिलीव अनसीन पैसेज प्रीटी मच एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, राइट? यू विल बी गेटिंग ए पैसेज, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस होंगे, आपको उसको समझना है और अटेम्प्ट करना है. ठीक है. इसमें मैं एक क्लू देना चाहूंगा कि ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. बिट डिफिकल्ट बट स्टिल ट्राई टू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स. ओके, आई बिलीव दैट वुड फेच यू more marks, and it's not an objective type question, so you should be writing the entire sentence. ऐसा नहीं कि आधा. और ये सब क्वेश्चन में सभी में स्पेस दिया रहेगा आपको, इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है, इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है. ठीक है, आंसर लिखने का. इसमें आपको एक पर्टिकुलर स्पेस दिया रहेगा आंसर का, उसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. तो वो आपको नोटिस करना है कि आप इतना लंबा नहीं लिख दे कि आपको समय मतलब कि नहीं हो पा रहा है. ठीक है. तो दिस वुड बी स्पेस बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. थर्ड पार्ट होता है उसको प्रिसिस समरी जो भी बोलते हैं. ठीक है. और हिंदी में उसका होगा सारांश. See, both are, I'm giving you the English language paper format as well, okay? Basically, this is on the just extreme one is the English language format. वही चीज आपको हिंदी में पूछा जाएगा. ठीक है. लैंग्वेज का एक ही फॉर्मेट होता है सारे पेपर का. तो सारांश भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सारांश को आपको समझने के लिए आपको इसमें कहा जाएगा आपको कि 1/3 वर्ड्स में लिखना है आपको. ठीक है. डायरेक्शन होगा कि इस जो गद्यांश आपको दी गई है उसका आपको 1/3 में समरी लिखना है. ठीक है. दैट वुड बी द डायरेक्शन. ओके. एंड यूजुअली इट इज ऑफ 600 वर्ड्स. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो यूजुअली वो 600 वर्ड्स का समरी ये होगा, क्या बोलते हैं, जो पैसेज होगा वो 600 वर्ड्स का होगा. तो आपको अल्टीमेटली आंसर में आपके 200 वर्ड्स होने चाहिए. ठीक है. एंड वन थिंग दैट वन मस्ट नोट इज दैट अगेन हाउ द स्पेस वुड बी देयर. तो इस तरह कुछ कॉलम बनाए रहेंगे आपका मेंस का पेपर में, आंसर शीट में ऐसे कॉलम बनाए हुए होंगे. ठीक है. आपको एक वर्ड एक में लिखना है. ठीक है. आप जब समरी लिख रहे होंगे जैसे कि मेरा, ठीक है, नाम, समथिंग ऑन दैट लाइन आप लिख रहे हैं, तो ऐसे क्योंकि दे आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट दिस 1/3 वर्ड, and henceforth they have created such a format that they are able to check whether you are writing in that number of words or not. ठीक है. वो आपको सरप्राइज की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मेरे फ्रेंड्स लोग जो पहली बार मेंस दे रहे थे, फॉर देम इट वाज अ सरप्राइज कि उन्हें ये बॉक्स फॉर्मेट मिला. ठीक है. तो ये सरप्राइज की तरह नहीं होना चाहिए. आप लोग को पता होना चाहिए कि वो बॉक्स फॉर्मेट में ही होगा. ठीक है. आई थिंक यहाँ में इन लोग कुछ 400 वर्ड्स का स्पेस देंगे, बट यू गाइस हैव टू यूटिलाइज ओनली वर्ड 200 वर्ड्स, जो वर्ड लिमिट है उसी को इस्तेमाल करना है. ठीक है. तो इस तरह, तो इसलिए आपको अगर सोचा जाए तो आपको बहुत ना सोच समझ के लिखना है इसमें, क्योंकि इफ यू आर कटिंग इट देन इट विल मेक जस्ट एवरीथिंग वेरी मेसी. ओके. देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड लिमिट गिवन. ठीक है. तो आप लोग बहुत ही सोच समझ करके इसको फिलअप करेंगे. ठीक है. और मेरा इसमें ये चीज भी ये मानना है कि देखिए, आई मीन इफ इट कम्स टू हिंदी, दे वुड बी मोर लुकिंग टू योर कंपोजिशन. लैंग्वेज पेपर इज मोर अबाउट कंपोजिशन. दे वोंट बी केयरिंग अबाउट द फैक्ट्स फिगर्स. आप फैक्ट्स फिगर कितना अच्छा रिप्रोड्यूस कर रहे हो, दे आर नॉट, doesn't matter much for them. how you are constructing a sentence, क्या आप लिंग, उसके बाद फिर जो भी मतलब होता है, like preposition, composition, whatever it's come, are you able to take care of that or not? ठीक है. basically grammatically you should be correct, you should be writing a correct sentence. that is the main purpose of this paper. Okay. And then there would be translation, which is popularly in Hindi would be termed as अनुवाद. ठीक है. दैट वुड फॉर्म द फोर्थ पार्ट. इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन आएगा और हिंदी में उसको अनुवाद किया जाएगा. ठीक है. ट्रांसलेशन दो टाइप के आएंगे आपको. एक आपका इंग्लिश टू हिंदी आएगा, एंड देन हिंदी टू इंग्लिश. ओके. ये 660 मार्क्स का है ये. ठीक है. आई बिलीव 160 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 220 मार्क्स ऑलरेडी. ठीक है. और ये जो ये सारे होंगे ये 20 मार्क्स के होंगे. ठीक है. ये 20 मार्क्स का होगा और ये 20 मार्क्स होगा. ठीक है. तो अभी तक हम लोग ने
260 मार्क्स का खत्म कर लिया है, ठीक है, पेपर का 260 मार्क्स खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पोर्शन सिर्फ 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 40 मार्क्स विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द, मतलब डू एज डायरेक्टेड आता है ना इंग्लिश में, डू एज डायरेक्टेड, तो वही है बेसिकली। 2-2 मार्क्स का आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे डू एज डायरेक्टेड, अगर इंग्लिश में होगा तो वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और दूसरा है ठीक है, हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस हिंदी का देना है, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू explain what kind of question is asked in the fifth part. May I rub this board? Okay. When it comes to the fifth section, that is do as directed, उसमें 4 सेक्शन होंगे, ठीक है, 4 पॉपुलर सेक्शन, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, एंड वो होगा इडियम्स, और उसको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं मुहावरे, ठीक है। तो मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करें, ये एक आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2-2 मार्क्स के, अगेन 10 मार्क्स यू विल गेट फॉर दैट। 4 सेक्शन है, 10 इंटू 4 40। सेकेंड सेक्शन आपका होगा इनकरेक्ट टू करेक्ट द सेंटेंस, बेसिकली इनकरेक्ट को आपको करेक्ट करने, ठीक है। और उसमें हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, बेसिकली इट विल बी रिटन इन हिंदी, इट विल बी शुद्ध रूप, यू हैव टू राइट द शुद्ध रूप, समथिंग ऑन दैट लाइन इट विल बी देयर, ओके। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर, ओके। उसमें था नाको तले चने चबाना, ठीक है, वो क्वेश्चन, वो एक मुहावरा दिया हुआ था, ठीक है। बेसिकली इट मीन्स दैट यू, आई मीन when it comes to, basically it is used in the perspective कि हाँ, when you are fighting in a battle, you are ensuring that the enemy has to go fight through tooth and nail, like you give a very difficult fight, then that idioms is used, ठीक है। आसानी से आप बना सकते, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। और इनकरेक्ट से करेक्ट तो इट वुड बी फनी फॉर यू गाइस एक्चुअली। लड़की जा रही है या फिर लड़की पढ़ रहा है ऐसा लिखा होगा और आपको बोला जाएगा इसका करेक्ट करो। The most funniest part you will find here, the incorrect to correct, very pretty simple, ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर आपका आएगा सिनोनिम लिखने के लिए, इसमें भी आपको 2 सिनोनिम लिखने पड़ेंगे, ठीक है, 2 सिनोनिम यू हैव टू राइट, और उसको बोलते हैं पर्यायवाची बेसिकली। The synonym would be difficult. This part would be pretty much, not pretty difficult, but it would be one, you know, it would be a level higher. ये पर्यायवाची जो सिनोनिम होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक था सूर्य, सूर्य ऑफकोर्स आप लोग आराम से दिनकर दिवाकर वट एवर इज दैट यू कुड एक्चुअली राइट इट, बट देर आर अदर क्वेश्चन ऑल्सो, जैसे कि मतलब और भी कुछ था उसमें जो कि जैसे बादल, ठीक है, तो उसका आपको मेघ और सॉरी इवन आई डोंट नो बट एनीवेज, ठीक है। सो मतलब क्या बोल, तो बेसिकली जस्ट बिट डिफिकल्ट वन आल्सो विल कम। आई फाइंड इट पर्सनली डिफिकल्ट, आई डोंट नो, आई गाइस प्रीटी मच सीम्स टू बी कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है। And then comes, you know, basically this part I find the most difficult, and that is the part in which 2 similar words would be given to you and you have to make sentence in such a way that the difference is clear, ठीक है। और दैट इज मतलब उसको, जैसे कि लास्ट ईयर का एग्जाम्पल था, मैं बता देता हूं उसको क्या बोलते हैं। हाँ, अर्थ और अंतर स्पष्ट हो जाए, ठीक है। दे विल आस्क यू दैट इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए इस प्रकार से कि अर्थ और अंतर दोनों स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड्स एंड देन यू हैव टू शोकेस द डिफरेंस बिटवीन देम, और बेसिकली आपको अर्थ और अंतर बताना है वर्ड में, सेंटेंस कंपोजिशन भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक आया था अन्न, अन्य और अन्न, ठीक है, समथिंग ऑन दैट लाइन वाज देयर, ठीक है। वन मीन्स फूड एंड अदर मीन्स अदर बेसिकली, ठीक है। तो यू हैव टू मेक ए सेंटेंस, ठीक है, कि हाँ मतलब किस तरीके से आप इसको सेंटेंस बनाएंगे ताकि वो बिल्कुल भी मतलब डिफरेंस को ये कर देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था अनिल और अनल, ठीक है, मेरे को नहीं पता उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, बट एनीवेज दैट टोटली फाइन।
सो दैट इज द एंटायर फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि 5 पार्ट्स कैसे आएंगे, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी, ठीक है। Many a times I might be saying I don't know something, but you guys should assume that I know everything, okay? Because that's just a joke. Okay. So for strategy, you know, I believe मेरा स्ट्रैटेजी कैसा होता था मैं बताता हूं आपको, चॉक करता हूं कि किस तरीके से व्हाट शुड बी फर्स्ट अटेम्प्टेड एंड हाउ वी शुड अटेम्प्ट इट, ओके। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्ट टू अटेम्प्ट इज अनसीन पैसेज, ठीक है। अब मैं सभी का पार्ट बाय पार्ट आपको बताते रहूंगा कि किस तरीके से मैं क्या करूंगा और क्या होगा, ठीक है। अनसीन पैसेज, एज आई टोल्ड यू, देयर वुड बी a specific space for you in that, and that is what you have to take care about. There is no word limit in the answer. You have to take care of the specific space in the given that, ठीक है। तो अनसीन पैसेज में जानने वाली बात यही चीज होगी, ठीक है। और मेरे अनुसार आपको, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि वी आर प्रीटी मच, यू नो, मतलब बच्चों की तरह तो है नहीं कि हाँ पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन यू विल गो बैक टू पैराग्राफ टू सर्च द आंसर। आई वुड सजेस्ट कि आप सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे आंसर लाने के लिए, ठीक है। प्रीटी सिंपल होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। इवन द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन दैट ऑर्डर ओनली, कि आपको पैसेज में वो शुरुआत में मिल जाए और दूसरा क्वेश्चन उसके थोड़ी देर बाद मिलेगा, ठीक है। तो वो ऑर्डर में होगा, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी इस चीज की, ठीक है। तो मैं किस तरह से उसको अटेम्प्ट करता था, आई यूज्ड फर्स्ट स्टडी द क्वेश्चन एंड देन सी द पैसेज एंड फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। 2 स्टेप प्रोसेस से ये मेरा अनसीन पैसेज खत्म हो जाता था, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी क्रिस्प, सी आई विल बी अटेंडिंग द क्वेश्चंस एट द एंड, बट सिंस इट्स फॉर मेंस आई रिपीटली आई एम सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिस्प, ओके। कुछ डाउट्स होगा आप लोग आखिरी में पूछ लेना। सेकंड दैट आई वुड बी डूइंग इज द समरी राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग। अगेन व्हेन इट कम्स टू दिस सेकंड पार्ट, दैट इज द व्हाट वी कॉल, जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, इसको समरी, समथिंग ऑन दैट लाइन, ठीक है। उसका हिंदी में सारांश, ठीक है। तो आपको सारांश लिखना होगा। तो आई बिलीव प्रिसिज और समरी में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रिसिज इज डिफरेंट एंड समरी इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें आपको अपने वर्डों में वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। ट्राई टू कम अप विथ योर ओन ओपिनियन ऑल्सो इन दिस, ठीक है। जैसे कि हाँ पूरा वो क्या बोलते हैं, पूरा पैराग्राफ होगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन कुछ डिस्ट्रक्शन के लाइन पे आया था, हाउ डिस्ट्रक्शन कुड बी गुड, समथिंग ऑन दैट लाइन, वो पूरा पैसेज था। लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, जो पेपर 2018 का था, ठीक है। तो उसमें मैंने पहले बताया कि पूरा एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए उसे, तो आपको समझ में आएगा कि पूरा पैराग्राफ मतलब पूरा जो 600 वर्ड है वो किस चीज के लिए दिया हो गया है, व्हाट डज इट एक्चुअली वांट्स टू टॉक अबाउट। दैट थिंग शुड कम इन द इनिशियल पार्ट इटसेल्फ, ठीक है। वो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा, जिसमें आपने पूरा बता दिया है कि वो पूरा जो 600 वर्ड है उसमें क्या कहना चाह रहा है, लेखक क्या कहने चाह रहा है, समथिंग ऑन दैट लाइन, ठीक है। तो वो आप पूरा पहले 2-3 पंक्तियों में क्लियर कर देंगे और फिर आप उसका समरी लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। आई थिंक जो भी पैराग्राफ होगा उसको पैराग्राफ वाइज ही आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो पैराग्राफ वाइज होगा, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ वाइज है तो हर एक पैराग्राफ को फिर आप रिड्यूस करते जाएंगे और वही ऑर्डर में आप रिड्यूस करके 200 वर्ड में करना है, ठीक है। उसमें आपको पैरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ यूल गेट बेसिकली प्रिसाइज राइटिंग में आपको स्पेस ऐसा मिलेगा, तो पैराग्राफ चेंज करने का आपको कोई जरूरत नहीं है प्रिसाइज राइटिंग जब आप कर रहे हैं। बेसिकली इन आंसर यू डोंट हैव टू चेंज द पैरा, इट वुड बी अ सिंगल पैरा ऑफ 200 वर्ड्स, ठीक है। और इस तरीके से आपको स्पेस मिला रहेगा। एक चीज आपको एक में लिखना है, ठीक है। कॉमा इसके साथ आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमा इज नॉट सेपरेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने शब्द लिखा और फिर कॉमा उसी के अंदर है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बट शब्द हमेशा दूसरे ही में आपको लिखना है, ठीक है, ब्लॉक में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होगा। बेसिकली इसमें आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आप जब मतलब मान लीजिए इसमें 4 पैराग्राफ है, ठीक है। आपने इसमें 2 पैराग्राफ को कन्वर्ट करने के लिए समरी लिखने में आपको लग रहा है कि मैं 150 वर्ड्स क्रॉस कर चुका हूं, तो मेरे अनुमान में आपको फिर डायरेक्ट आपको नेक्स्ट 2 पैराग्राफ को मूव करना चाहिए फटाफट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें 200 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 पैराग्राफ को समरी में कर दिया है, अभी तक आपका 2 पैराग्राफ समराइज हो चुका है एंड स्टिल यू आर सीइंग कि आपने
150 वर्ड्स इस्तेमाल कर लिया तो दैट इज ए रेड अलर्ट, ठीक है, क्योंकि नाउ यू ओनली हैव 50 वर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ विच इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। तो ये चीज में बस वर्ड ही एक चीज होगा जो आपको बहुत ही मतलब वो होगा, मतलब इट वुड बी ए चैलेंज फॉर यू, द वर्ड लिमिट इज गोइंग टू बी चैलेंज, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी क्लियरली विजिबल, you don't have any space, and I hope everybody knows nowadays that we get penalty for exceeding the word limit. That is the general format in GS essay as well, ठीक है। तो आपको इसमें वर्ड लिमिट का ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आपको ये देखते रहना, आपका दिमाग में पूरा फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि हर एक पैराग्राफ को मैं कितना वर्ड्स में रिड्यूस करूंगा ताकि अल्टीमेटली ये 200 वर्ड्स का हो जाए, ठीक है। जैसे 4 पैराग्राफ का है वो, तो आपको हर एक पैराग्राफ जितना का भी होगा आपको होना चाहिए हर एक पैराग्राफ आप लिखे 50 वर्ड्स में, ठीक है। तो वो मेंटल सेटअप होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एंड मोमेंट में आप देख रहे हैं कि ये तो आगे पीछे हो रहा है, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो ये चीज को आप बहुत ही अच्छी तरह से समय देके कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस, क्योंकि यहां से 60 और यहां से 60 मार्क्स, 120 मार्क्स आपके हाथ में आने वाला है, और ये सब इसमें कोई गलत सही नहीं है, अनसीन पैसेज आप गलत नहीं कर सकते। अगर आप सही तरीके से लिख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत करेगा पहले पार्ट में, और सो वुड बी द सेकंड थिंग ऑल्सो, इट इज बाउंड टू बी इन द करेक्ट फॉर्मेट ओनली, राइट और रॉन्ग का सवाल नहीं होगा। सिर्फ हाँ आपको सेंटेंस कंपोजिशन वुड बी समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट, ठीक है। तो सेंटेंस कंपोजिशन आई बिलीव इसलिए इसमें भी इतना डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे वुड बी द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस कंपोजिशन, ठीक है। ये सब में आप कुछ तरीके से कर ही लेंगे, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कंपोजिशन इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स, ठीक है। आप कितना सही तरीके से इसका समरी में मान लीजिए कोई टर्म है, आपने उसको वहां पे भी लिख दिया, अच्छी बात है, वो इतना ज्यादा एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉमा सही पे लगाया, आपने उसको लिंक और जो भी मतलब एवरी ग्रामर का जो सिंटेक्स होता है वो सारा चीज आपने देखा है कि नहीं, ठीक है। वो चीज पे ज्यादा ध्यान होगा। थर्ड थिंग दैट आई डू इज द ट्रांसलेशन, ठीक है, जिसको अनुवाद बोलते हैं। यस मैंने जब लिखा था तो मैंने पैराग्राफ के बाद वैकेंट नहीं रखा था, ठीक है। मैंने जो समरी मैंने लिखा था, आई हैव रिटन इट इन कॉन्टिन्यूस, बेसिकली 200 वर्ड्स बिकेम ए सिंगल पैराग्राफ इन माय आंसर, ठीक है। आई डिडंट लेफ्ट एन एंटायर कॉलम फॉर चेंजिंग पैराग्राफ, ओके। यस बेसिकली हाँ, वर्ड कॉमा पूर्ण विराम ये सब एक ही बॉक्स में आ जाएगा, वर्ड के साथ में आ सकता है, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है आया है तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी ओनली वर्ड स्पेसिफिक, नॉट दिस वन, या यू कैन यूज इंग्लिश न्यूमेरिकल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इंग्लिश न्यूमेरिकल आप लिख सकते हैं, बेसिकली वही है ना, आप कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, राइट। नो दिस इज टोटली फाइन, ठीक है। Should we move ahead for the next part, ठीक है। So when it comes to translation, it is going to be the most easy part, और उसमें भी मैं सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूँ क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा बन गई, राइट। सो आई वुड गो विद द हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन फर्स्ट, डू दैट एंड देन मूव टू द इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। यहां में भी आपको वोकैब का थोड़ा चैलेंज आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप उसको, जैसे जीडीपी का आपको नहीं याद आ रहेगा तो ऑफकोर्स आप जीडीपी लिखोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। इतना नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमी का अर्थशास्त्र नहीं आ रहा है तो ठीक है, टोटली फाइन, यू कैन गो अहेड विद इकोनॉमी, बट फर्स्ट यू विल ट्राई टू राइट द हिंदी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप हिंदी टू इंग्लिश करेंगे क्योंकि वो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें जो वर्ड्स आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप समय देंगे। ऐसा बहुत बार होगा कि आप ना जब ऐसे लिख रहे होंगे या फिर अनसीन पैसेज पढ़ रहे होंगे तो उसका सिमिलर वर्ड आपको यहाँ पे आ चुका होगा ये सब जगह में। इट्स अ वेरी गुड श्री, देयर दिस वुड बी अराउंड लेट्स से 1000 वर्ड्स का ये होगा पैराग्राफ, ये 600 वर्ड का होगा। तो जो कॉमन यूजली वर्ड्स होते हैं ना वो आपको इधर में मिल चुके होंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई वर्ड जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है तो प्लीज ट्राई टू रिकलेक्ट इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ठीक है। आप सोचेंगे ये ऑर्डर इसलिए बनाया गया है, दिस स्ट्रेटजी हैज बीन मेड सो दैट विद एवरी स्टेप यू बिकम मोर रिच इन वोकैबुलरी।
आप समझ रहे हैं मेरा? इसलिए मैं ऐसे सबसे आखिरी में लिखता हूं, क्योंकि ऐसे में आपको खुद के वर्ड से पूरा, यू डोंट हैव एनीथिंग विथ यू, राइट? इन दिस यू हैव मोस्ट ऑफ द थिंग विथ यू, and henceforth this strategy is made in that order so that it helps you develop, it helps you make easy in terms of vocabulary. ठीक है, इसलिए ये इस तरह स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप चौथा पार्ट करेंगे जो कि डू एज डायरेक्टेड होता है। ठीक है, सो डू एज डायरेक्टेड में मोस्टली आपको वही देखना है कि जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसके अनुसार, दिस इज प्रीटी सिंपल। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूं। जो डू एज डायरेक्टेड के लिए सोर्स अगर किसी को करने का मन है तो आप लोग यूनिक पब्लिकेशन या फिर एनी यूनिक पब्लिशर्स का हिंदी का आएगा। ठीक है, इट वुड बी स्पेसिफिकली फॉर द यूपीएससी ओनली, यूपीएससी स्टेट पीसीएस लिखा होगा उसमें, पिंक कलर का बुक आता है। ठीक है, तो आप उसमें से पीछे से मुहावरे, सिनोनिम, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स सब पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ लोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एनी बुक दैट यू एक्चुअली फाइंड। ठीक है, हिंदी व्याकरण का आपको क्लास 10 तक का कोई भी बुक आपको जो सही लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई यूज दिस बुक, यूनिक पब्लिशर का जो था उसके पीछे से मैंने देख लिया था, मुहावरे, सिनोनिम जो सब था सब देख लिया था। ठीक है, और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन कुड बी इन दैट लाइन आल्सो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ये जो छोटा सा सेगमेंट है डू एज डायरेक्टेड का, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और फटाफट देख लो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आए, और ये भी ट्राई करो कि उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगे। तो देखो, आप लोग को हिंदी जो करना है लैंग्वेज पेपर, अगर आप देखोगे तो सिर्फ 40 मार्क्स है। ठीक है, आपने जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो सब आप कर चुके हो, राइट? यू हैव अटेम्प्टेड ए गुड अमाउंट। अभी तक भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपका अराउंड आराम से 160 मार्क्स का हो चुका है, 75 ही लाना है। ठीक है, इतना तो मतलब किस्मत भी खराब हो तो भी आ जाना चाहिए मुझे लगता है इससे ही। ठीक है, तो ये चीज पे आप ज्यादा फोकस नहीं करोगे। मैं वो इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, जो कि आपके जीएस और एसएस और ऑप्शनल का समय काटेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट में आप इतना सोचोगे नहीं। ठीक है, इफ यू फील दैट इज प्रीटी कंफर्टेबल, टोटली फाइन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, मुझे याद है जब मैं पहली बार देने गया था तो मतलब ऐसा होता है कि मतलब इस बार भी वही था मेरा, मतलब 7 को हम लोग का ऑप्शनल होता है, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, 7 तारीख को ऑप्शनल था। ठीक है, 6 तारीख को लैंग्वेज पेपर होता है, और फिर इस बार हम लोग को पूरा सप्ताह गैप मिला था एक्चुअली। ठीक है, छुट्टियां मिली थी हमें। मैं 4 तारीख को ऑप्शनल पढ़ना बंद कर दिया था, सुबह 5 तारीख के सुबह से शाम तक मैंने हिंदी पढ़ा था, क्योंकि मेरे को हिंदी में डर है। ठीक है, मेरे को हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो आई गिव, दैट इज द ओनली डे फॉर विच आई रीड हिंदी, बट व्हेन आई डू इट वेरी डिलीजेंटली। ठीक है, मेरा लो हैंगिंग फ्रूट्स जो मैंने बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, वो मेरा मार्क्ड होता है और मैं उस चीज को पढ़ के रिवाइज करके जाता हूँ। ठीक है, और मैं यूजुअली नोट्स कैरी नहीं करता था, मेरा सेंटर बहुत दूर था तो मैं बहुत कम ही चीज लेके जाता था। तो सेंटर में भी आप पहले पहुंच जाओगे तो बच्चे लोग पढ़ रहे होते थे, तो आई जस्ट यूज टू स्टैंड विद देम एंड लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, मैं उसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ता था कुछ भी। ठीक है, मुझे याद है कि एक एडवोकेट और उसकी वाइफ आती थी, जैसे कपल थे, उन लोग एक दूसरे को खूब पढ़ाते रहते थे। मैं चुपचाप खड़ा होकर उन लोग, मैं पूछता था, परमिशन ले लेता था और चुपचाप खड़ा होकर सुन लेता था उनका कि मुहावरे कौन कौन सा। एक्चुअली एक्चुअली जो नाको चले समथिंग धोबी है ना, नाको तले तब चने तवाना समथिंग वट एवर इट इज, दैट एक्चुअली केम बिकॉज दैट couple was asking also. So I basically it is going to be your luck, and list of phrases is idioms is not that vast. ठीक है, वो लो हैंगिंग फ्रूट्स में आएगा, वो फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, भले सिनोनिम इट इज ए वेरी वास्ट थिंग टू एक्चुअली अटेम्प्ट, देन वो वर्ड मतलब अंतर और केवल अर्थ स्पष्ट करने वाले जो सेंटेंस बनाने वो भी डिफिकल्ट हो सकता है, पर मुहावरे जो होंगे 10 मार्क के वो आपको अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, अगर आपने वो लिस्ट अच्छा देख लिया है तो। ठीक है, और लास्ट, मैं सबसे लास्ट में करता हूं एस से, क्योंकि यहां से हम लोग का बहुत मोमेंटम और एक्सरसाइज हो चुका होता है। आपके वोकैब जो हिंदी के होंगे वो जो लुप्त हो चुका था दिमाग से, वो भी अचानक से जिंदा हो चुका होगा। ठीक है, तो आई बिलीव देन यू वुड बी गोइंग फॉर द एसे। ओके, ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, आई एम टेलिंग यू इट्स प्रीटी इजी टू स्कोर 75 ओनली इफ यू हैव दैट strategy. The same thing I always call for the CSET paper also. Whenever there is a qualifying paper, it is more about strategy, less about preparation. ठीक है, CSET हो जो भी क्वालिफाइंग पेपर को, आप हमेशा स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही चीज इसमें भी आपको इस्तेमाल करना है। दिस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर दोस। ठीक है,
The first in this, it become the idioms, that you have to utilize any simple source book that you can, ठीक है. यूनिक पब्लिशर, आई जस्ट सेड ए नेम. यू कैन यूटिलाइज एनी इवन ऑनलाइन सोर्स ऑल्सो, ठीक है. अगर आपको उस समय नहीं मिला है, आपने बुक नहीं खरीदा है, तो आप फटाक से जाएंगे, बहुत सारे वर्डप्रेस या फिर बहुत सारे साइट आ जाएंगे जिसमें वहां पे अच्छा खासा पॉपुलर इडियम्स का जो मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग किया हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है. तो इतना स्ट्रेस फाइट नहीं मारना है इसके लिए, ठीक है. दूसरा चीज, आपको सिनोनिम नेक्स्ट लो हैंगिंग फ्रूट होता है, ठीक है, जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं सिनोनिम, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेक्शन आता है उसका इतना ट्रेड ऑफ है नहीं, तो मैं बोलूंगा भी नहीं करने के लिए, ठीक है. And the third low hanging fruit is the essay, which now I am going to talk about in detail. Why essay becomes so important? Because you have a margin of 100 marks in this. You could score any marks from 0 to 100, and I believe lower limit should be 25 only, and up to let's say 75 तक आप इसमें स्कोर कर सकते हैं. तो this will contribute significantly to your 75 qualifying marks, ठीक है. तो इसलिए मैं essay को अलग से सेपरेटली बात करना चाहूंगा, ठीक है. How to do this and what would be a good sources. So when I was preparing, मतलब जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दे रहा था, तो मेरे को जब मेरे देना था तो मुझे जैसा था कि ऐसे मैंने सोचा कि सोर्स से इस्तेमाल करूंगा. जो बुक था मेरे पास, मैंने उसका ऐसे पढ़ना शुरू किया था. बट दैट वाज वेरी बैड थिंग दैट आई वाज डूइंग. फर्स्ट, व्हाई? बिकॉज आप लोग को कुछ चीज ध्यान रखना है. इट इज ए 600 वर्ड्स ऐसे, ठीक है. जो भी सोर्स आप उठाएंगे वो 1000 वर्ड्स होगा, 2000 वर्ड्स तक भी जाएगा. तो इट इज गोइंग टू बी टू मच फिल्ड अप विद अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो जब आता है ऐसे, तो फर्स्ट बेस्ट सोर्स दैट यू कुड यूटिलाइज इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखेंगे, ठीक है. उसी को आप गूगल सर्च भी करेंगे. जैसे कि मान लीजिए उसने पूरा स्टेटमेंट डाला है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूरा स्टेटमेंट है, तो आपको ये हो सकता है कि वो स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली नहीं मिले इंटरनेट पे, लेकिन आपको वो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है उस पे मिल जाएगा इससे आराम से, ठीक है. आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल फाइंड द डायरेक्ट स्टेटमेंट इन द internet, but if you could understand this is from globalization or this is from education, you could go online and look for the essay on similar. You even write the number of words in which you learned. 500-600 words भी आपका देखना है आपको वैसा ऐसे. Why? Because you should understand organization कैसा होगा, ठीक है. तो मेरा organization हो सकता 4+2 फॉर्मेट में, ठीक है. मैं 4 छोटे पैराग्राफ लिखता था, ठीक है, और 2 इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखता था. ये मेरा फॉर्मेट होता था ऐसे लिखने का, ठीक है. 4+2, ठीक है, 6, एंड each of each used to be 100 words each, ठीक है. तो ये मेरा फॉर्मेट होता था. दिमाग में मेरा बैठा रहता था कि मुझे 4+2 फॉर्मेट लिखना है. 4 पैराग्राफ मेरे बॉडी में आएंगे, 1 इंट्रोडक्शन 1 कंक्लूजन, ठीक है. एंड देन इट इज प्रीटी मच what we use in the essay writing in 600 words. So let me just tell you, essay ka introduction can be of 3 types. Again I am talking in English, but you guys should understand कि हाँ ये इसी को follow करना है, ठीक है. Guidelines one could follow. When it comes to introduction, you could always write either the definition or data or example. That could be the first format to start with, ठीक है. ग्लोबलाइजेशन है या फिर अपना आर्थिक स्थिति के बारे में बात की गई है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति आज $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, ठीक है. तो वो एक डेटाबेस या डेफिनेशन बेस्ड हो गया, ठीक है. आप समझ रहे हैं? दूसरा तरीका जो आप कर सकते हैं वो है एनेक्डोट बेस्ड. एनेक्डोट बेस्ड, ठीक है. तो आपने रमा को इंट्रोड्यूस किया, लक्ष्मी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. आपने रमेश को इंट्रोड्यूस किया या फिर मुकेश को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. लेकिन इस चीज में आपको ध्यान देना है कि आपका रमा और लक्ष्मी गायब नहीं हो जाना चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है. कंक्लूजन में भी आना चाहिए. तो आपके दिमाग में कंक्लूजन उस समय साथ ही साथ फ्रेम करना है, ठीक है. आप समझ रहे हैं? जो सेकंड टाइप है एनेक्डोट बेस्ड है, राइट. यू वुड बी इंट्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टर, you must ensure that that characters actually comes in the conclusion as well, and it would be very well if you are reflecting it in all the 4 paragraph. That is far better, ठीक है, because you are still sticking with the storyline that you have
introduce, used in the introduction. Okay, so one thing that you could have to ensure when you start an anecdote based essay is to write the conclusion at the same time, or at least have an idea what you are going to write in the conclusion already. ठीक है, तो इस तरीके से आप anecdote, और तीसरा I believe is the popular in the most used I believe is the quote based. अगर कोई quote याद है, ठीक है, तो आप quote based introduction start कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का. कंक्लूजन प्रीटी मच समरी भी लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है. वहां पे आपको ये नहीं दिखेगा कि आप कितना अच्छा कोड लिख रहे हैं. ठीक है, आपने लिख दिया यत्र समथिंग नरयस्तु पूजयंती समथिंग ऑन दैट लाइन पूरा लिख दिया, मीनिंगलेस. दे डोंट केयर अबाउट दैट. दे स्टिल वांट टू सी हाउ यू आर कंपोजिंग इट. दे स्टिल वांट टू सी हाउ यू क्लोज आर टू द टॉपिक ऑफ द एसे. आप समझ रहे हैं, उसमें ये नहीं चेक करेगा कि आपका नॉलेज कितना है. They don't want, even आपने 3 ट्रिलियन के बदली आपने लिख ही दिया कि हमारा $6 ट्रिलियन हो चुका है. Doesn't matter for them. ठीक है, वो उसमें एक सेंटेंस कंपोजिशन देखेंगे, आपका सिंटेक्स देखेंगे, क्या आप सही तरीके से कंपोजिशन कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो फैक्ट्स वैल्यू इसमें आपको इतना प्रिसाइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है. जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कंक्लूजन या बॉडी लिख रहे हैं, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत तरीके से करना है. ठीक है, when it comes to 4 paragraph, I usually frame in my mind 4 question which I answer in this 4 paragraph. ठीक है, एक ही ऐसे लिखना है, जरा वैरायटी नहीं चाहिए, तो सीधे मैं 4 क्वेश्चन फ्रेम करता हूं अपने दिमाग में. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, मैंने ग्लोबलाइजेशन डिफाइन किया, फिर मैंने सोचा कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, देन आई वुड से इज इट गुड और बैड. ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस विच इंडिया इज फेसिंग. ठीक है, हाउ टू ओवरकम सच चैलेंज. ठीक है, और समथिंग ऑन दैट लाइन. मतलब 4 क्वेश्चन मैं दिमाग में फ्रेम कर लूंगा. ठीक है, जो कि वो क्वेश्चन जो टॉपिक है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कैप्चर कर रहा होगा. वो 4 क्वेश्चन में जैसे ही कर लूंगा, उसको 4 पैराग्राफ में 100 वर्ड का आंसर लिखना है, उसका 4 पैरा बॉडी बन जाएगा मेरा. डन विद द कंक्लूजन. कंक्लूजन मैंने पहले ही सोच लिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा आप इंट्रोड्यूस करें वैसा कंक्लूजन एक वो आए. मतलब यू नो लाइक इट शुड बी कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ द इन्विजिलेटर. ओके, इट शुड एक्चुअली कैप्चर. ऐसा नहीं कि कंक्लूजन में जाके आपने नए वर्ड डाल रहे हो, तो दैट वुड जस्ट बी एन ओपन एंडेड कंक्लूजन. दैट इज नॉट what you call usually preferred. You should go with something that start and you conclude at the end. ठीक है, so this is how I go with the essay. In terms of words, I would say हाँ, ऐसा बहुत बार होगा कि आपका वो terms याद नहीं आ रहे होंगे. Totally fine. For a while, you could write in what you call that इंग्लिश का जो वर्ड है उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए. ठीक है, बट जैसा कि मैंने कहा, ये पूरा फॉर्मेट जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया आपको, अनसीन पैसेज से आखिरी में एस्से में अटेम्प्ट करना, इसलिए मैंने बताया क्योंकि तब तक आपका वोकैब उतना डेवलप हो चुका होगा. कोई कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा होगा तो प्रेसिस से आप ढूंढ सकते हैं, या तो आप उसको अनसीन पैसेज या फिर ट्रांसलेशन से ढूंढ सकते हैं. ठीक है, फॉर एस्से आई यूज्ड टू गिव 45 मिनट्स कंप्लीटली. ठीक है, जो आखिरी के 45 मिनट्स थे वो एस्से में देता था. क्यों? क्योंकि एस्से पहला चीज है जो देखेगा वो. द इन्विजिलेटर वुड सी योर एस्से, द फर्स्ट थिंग would be the first thing that. So I would use to ensure my handwriting is also legible. ओके, माई कंपोजिशन आई वुड इवन, मैं ऐसे लिखता था आधा घंटे में, फिर उसको 15 मिनट में चेक भी करता था, पूरा सेंटेंस को पढ़ता था मैं. ठीक है, कि हाँ है लिखना चाहिए था, कि मैंने मतलब यू नो आई होप यू आर गेटिंग द सिंटेक्स पार्ट, ऑल द यू नो जेंडर एंड वॉट एवर इट्स कम, इट शुड बी इंश्योर दैट वी एक्चुअली राइट इन दैट फॉर्मेट. ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कंपोजिशन का ही मार्क्स है. एंड द सो थिंग इज अप्लाइड टू इंग्लिश एस्से ऑल्सो. इंग्लिश में भी यही फॉर्मेट होगा जो मैंने आपको बोला है, यही 4-5 सेक्शन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी. ठीक है, वहां पे भी आपको वही देखना है कि आपका एस्से में आप ज्यादा लिख दो, बहुत ही हाई फाई एस्से, बहुत फ्लावरी भी लिख दो, बट डजंट मैटर. दे वुड बी लुकिंग कि बच्चे ने प्रीपोजिशन और जो मतलब प्रीफिक्स व्हाटएवर इट कम्स इन द वोकैबुलरी और ग्रामर, इज ही यूजिंग दैट वेल और नॉट. That is going to be the aim of the invigilator. I hope you are getting the aim of the invigilator is not to understand how well you write on a particular topic. It is more focused only on the test of your language, how much command you have over the language. Okay? So I hope this is how I write the essay. This is all that I have, you know, in very crisp and short, I have told about the entire language paper. Okay? More focus on the Hindi, but similarly it can be applied in the English language as well. Now I would welcome the question from your end.
Yes, it is going to be a line to line translation. Basically, in the paragraph that is English to Hindi, जो translation आएगी आपकी, वो उतने words में ही होगी और उतना ही space भी दिया जाएगा. It won't be जैसे summary writing में आपका वो 600 words का होगा, आपको 200 word में लिखना है, पर वैसा उस पे नहीं होगा. उसमें आपका space और word passage ही उतना ही छोटा दिया जाएगा ताकि आप उसको line to line convert कर लो. ठीक है? और ऐसा होगा, अभी आप देखेंगे अगर इफ यू हैव नोटिस दिस थिंग्स, देयर माइट बी अ थिंग व्हिच कुड बी सेड इन वेरी व्हाट यू कॉल ससिंट और क्रिस्प मैनर इन इंग्लिश, बट दैट सेम थिंग वुड ट्रांसलेट इनटू मल्टीपल लाइंस इन हिंदी. सो फॉर दैट यू शुड बी प्रीटी मच कंफर्टेबल. ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ हर एक को लाइन बाय लाइन करना ही है. ऐसा होगा कि वो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बहुत ही संक्षिप्त में लिख पाए, तो इस चीज पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? देयर कुड बी थिंग्स व्हिच व्हेन रिटन इन हिंदी वुड टर्न इनटू 2-3 लाइंस, बट इन इंग्लिश इट कुड बी कंपोज्ड इन अ सिंगल लाइन, एंड दैट्स टोटली फाइन when you are writing doing the translation. It won't impact in at all because you are at least capturing all the essence that is there. Okay, if you are able to capture that essence from English to Hindi, then you are done with the translation. ठीक है? Anything else? Yes. No. Devanagari. You have to write the in Devanagari. ठीक है? You have to write it in Devanagari. And I have to tell you, one thing that I used to do before exam is that first I would go with the commonly used terms. ठीक है? Commonly used terms को आपको कौन कौन से commonly used terms जानना चाहोगे तो बहुत आसान से आपको मिल जाएगा अगर if you are going through the previous year question. The previous year question, if you'll go through, you'll understand that UPSC might be asking question on the general terms only. It won't be too high-fi. तो क्वेश्चन हाई-फाई ज्यादा नहीं होंगे कि हाँ आपको बहुत मुश्किल होगा. तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको ऐसे भी दिमाग में आ ही जाएगा कि मोस्ट कॉमन वर्ड्स को लिख लो. ठीक है? और दूसरा है कि आप जब भी वेन एवर यू आर थिंकिंग, लेट्स से आज आपने 5 टॉपिक सोच लिया, ठीक है, आपको मैं जैसे आई वुड एनकरेज एवरीबडी टू राइट 2 essay बिफोर गोइंग टू एक्चुअल एग्जाम. 2 essay, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1 घंटा आपको लगाना है, 45 मिनट्स में आपको एक्चुअली लिखना है. पर आप घर पे जब ट्राई कर रहे हैं तो 2 घंटा निकालेंगे, 1 घंटे में 1 essay लिखेंगे, ठीक है, और आखिरी के 15 मिनट आप उसको चेक करेंगे. ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेक इट सो दैट यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द जो मतलब सिंटैक्स एंड ग्रामर. ठीक है? तो चेक करना बहुत जरूरी है. आप उसमें ऐसा होगा कि कहीं चीज में मिसिंग होगा तो आप उसको ऐड भी करना होगा. ठीक है? तो 2 essay आई वुड एनकरेज एवरीबडी, 2 essay one must write before going to actual means. ठीक है? सो दैट वुड हेल्प यू. एंड विद द जनरल टॉपिक जस्ट बी, मतलब ठीक है, एजुकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब शिक्षा, तो वो सब चीज तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए, बेसिक, जो कि आप गूगल ट्रांसलेट से फटाफट. और इन माई केस इट यूज टू बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. जैसे ही मैं अपना क्या बोलते हैं 5 तारीख, मतलब 5 तारीख को जैसा कि मैंने बताया सुबह से शाम ट्रांसलेशन चलता है. इवन मैं रास्ते में भी मतलब कुछ भी दिमाग में आ रहा है, सिंपल सिंपल चीज की, हाँ पार्क के बगल से मैं गुजर रहा हूँ, इफ आई एम ड्राइविंग माई कार एंड आई एम जस्ट गोइंग थ्रू व्हाट यू कॉल गोइंग पासिंग बाय ए पार्क, देन आई वुड ट्राई टू थिंक व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी. जैसे उद्यान या बगीचा बोला जाता है, तो मैं ट्राई करूंगा उसको. आप समझ रहे हो? It would become for me, especially I'm telling you, student who have quite what you call lost, or at least you have less grip on this language or vocabulary, must try this exercise. It should be a total exercise till the 9 a.m. when you are entering the examination hall. It is going to continuously help you. Try to replace every of your thoughts, every term that is coming in your thought with your Hindi equivalent. If you are doing so, I believe you would be very much safe. It is all an exercise, I'm telling you, my friend. When I was giving, previous, I was very, of course, everybody has insecurity, even I had. So I was feeling so, but I felt that अगर पढ़ा है, class 10 में marks आए हैं, class 10 तक पढ़ा है मैंने, तो ऐसा हो नहीं सकता वो कहीं जाएगा. You just have to give it a proper amount of time. And that one day that you would be giving before means the actual Hindi paper, I think it is totally sufficient. It is totally sufficient to help you rejig your memory and come up with the vocab that you used to have in up to class 10. Since till then you have the Hindi, I believe, language. I had Sanskrit also. So for me, I felt it should. That's why I was so confident of taking this challenge. Although I was getting an exemption, I felt कि नहीं करना तो करना है. ठीक है? So that is something what I would like to talk about paper. Anything else that you want to know? I would discourage that.
clearly discourage that. ठीक है? If it is a test of English language, it's most of the thing you are going to project, you know the language well. ठीक है? If it is a test of Hindi paper, try to demonstrate the same very thing. And that is why I am not suggesting you guys to use the term in English. ठीक है? देवनागरी में ही ट्राई कीजिए लिखने के लिए. और अब तो मैसेजिंग का जमाना है कि उसको भी समझ में आ ही जाएगा इन्विजिलेटर को भी, अगर आपने देवनागरी में भी कोई इंग्लिश वर्ड लिखा है तो. ठीक है? अगर आप एजुकेशन को ऐसे करके हिंदी देवनागरी में भी लिखोगे तो आई बिलीव यू वुड अंडरस्टैंड. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? It won't make, and as I said, it doesn't depend much on those. It more depends upon the syntax, the grammar. Terms can always be utilized and can always be learned in a language. It is not something that is the precise demand of this paper. The precise demand is your command on the syntax, composition and the grammar. ठीक है? वो बेसिक ही होगा. ऐसा नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताएंगे कि हाँ, तो then you have to know many things. Make very simple and short sentence. If you are making such short and simple sentence in the essay, in the precise writing, you would never have a problem with the grammar. इतना difficult नहीं है, वो हमारी मातृभाषा है, हमने पढ़ाई की है, तो इतना भी हम लोग को difficulty नहीं आएगा. आपका बस aim होना चाहिए कि आप short और simple sentence बनाएं, चाहे वो precise writing हो, चाहे वो essay writing हो, तो आपको इतना problem नहीं आने वाली है. ठीक है? Okay, with this I am ending the session. And other doubts, I am in the faculty room. Okay, thank you.